السلام علیکم ناصرس میں ایک دلچسپ ناول پھر ہو نہ پگلی کے ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کمرے میں آ کر اس سے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تشکر سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سامان رکھ کر پلٹے پھر کہنے لگے، 2 بیڈ میں نے اس لیے لیے کہ تمہیں زکام اور کھانسی ہے اور میں بڑی حساس طبیعت کا مالک ہوں۔ ویسے بھی ان کے اثرات جلد ایک دوسرے پر پڑتے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے تکلیف سے ان کی جانب دیکھا۔ اس لحاظ سے تو آپ کو وراج 2 کمرے لینے چاہیے تھے۔ وراج حسن، اتنی سطحی سوچ ہے آپ کی، انتہائی خود پسند اور مطلب پرست ہوس پرست شخص آپ۔ یہ تلاش میری تھی نہیں تو پھر یہاں آ کر ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اب کوئی راہ فرار باقی نہیں چھوڑی۔ آپ نے چلنے کے لیے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس کی آنکھیں بالدستور جھکی ہوئی تھی۔ اب تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ بیماری کو غنیمت جان کر بستر پر گر پڑی۔ پڑتے ہی سے ہوش نہ رہا۔ صبح سے بہت تیز بخار تھا۔ راج حسن کے پکارے جانے پر وہ اٹھی، نیند دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لو، رات کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر یہ دعا لے لینا۔ انہوں نے دعا میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے خواہ ہی اپنائیت کا احساس ہوا۔ بیماری میں انسان ویسے ہی بے حد حساس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت تو عجیب تھی۔ بات بات پر رونا آنے لگا۔ دل بالکل خالی ہو کر رہ گیا۔ کاش راج حسن اس وقت آپ میرے شوہر ہوتے، زندگی اسی ترتیب سے چل رہی ہوتی، اتنا اچھا لگتا مجھے۔ یہ سب کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم پھر سے ایک ہو جائیں؟ اپنی ہی سوچ پر وہ خود پشیمان ہو گئی۔ دعا لے لو، ہو سکتا ہے بخار کے ساتھ غصہ بھی اتر جائے۔ کس احساس کے تحت وہ انہیں دعا پلا رہے تھے؟ اس کے دل میں بے وجہ خوشگمانی نے کیسی جگہ لی؟ کیسی خوشگمانی تھی؟ اللہ کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا، بلکہ نقصان ہی نقصان تھا۔ آپ کو اس سے کیا، میں جیوں یا مروں؟ وہ رکھائی سے چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ عورت بھی کیا شے ہے، مرد کی ذرا سی ہمدردی اور توجہ سے کتنی شانت ہو جاتی ہے اور مزید کی خواہش کرنے لگتی ہے۔ بے وجہ خوش فہم ہو جانے والی زندہ حقیقت عورت ہی تو ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ساری رات سو نہ سکا۔ وہ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑے ہوئے، پھر اس کی طرف جگ سے پانی انڈیلا۔ قصاص ندامت سے وہ کہنا چاہتی تھی مگر چپ رہی۔ وہ گلاس اور دعا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تمہاری کھانسی نے مجھے بہت ڈسٹرب رکھا، اس لیے میں سو نہیں سکا۔ وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی، پورے وجود میں جیسے آگ سی بھر گئی۔ وہ ان کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک دیا۔ گلاس اور دعا دور جا گرے۔ نہیں پینی مجھے دعا، نہیں چاہیے مجھے کوئی ہمدردی، زہر لا دیجیے مجھے، گلا دبا دیجیے میرا، ایک بار ہی کیوں نہیں مجھے مار دیتے؟ کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟ وہ اتشال سے چلاتے چلاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر نڈال ہو کر ایک طرف کو لڑک گئی۔ راج حسن ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے، دوا دی اور چلے گئی۔ شام تک تقریباً اسے ہوش آ گیا۔ خاموشی سے وقت گزر رہا تھا۔ وہ بستر میں پڑی رہی۔ وراج ایسے ہی گھوم پھر کر آتے۔ بخار بھی ختم ہو گیا تھا، پھر نزلہ زکام کی شکایت بھی نہ رہی، مگر ہر وقت اعصاب پر تھکاوٹ کا گمان ہوتا۔ دل کی عجیب کیفیت تھی، کبھی تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا، کبھی اتنا آہستہ کہ آنکھوں کے آگے تارے سے جلملاتے نظر آتے۔ کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وراج کا موڈ سخت ہو تھا جب ہی مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 8واں روز تھا، اس کا دل بالکل نہیں رک رہا تھا۔ وراج باہر سے آئے تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے بال سنوارتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے دنوں کی نسبت وہ کھلی کھلی نظر آ رہی تھی۔ صدا شکر تھا کہ اس نے 8ویں روز لباس تبدیل تو کیا۔ وراج نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ وہ پیکنگ کر چکی تھی، انہیں دیکھ کر کہنے لگی، ہم کب گھر جائیں گے؟ وہ انتہائی افسردہ لہجے میں بولی، فی الحال ارادہ تو نہیں ہے، انہوں نے کتی سے لہجے میں کہا اور سامان کی پیکنگ دے کر ان کے تو ماتھے پہ بل ہی پڑ گئے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ حسن، مجھے گھر لے جائیے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بات بھیگی چلی جا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وزارت تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔
انہوں نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ عورتوں کو بھی تو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے، بیماری کے بہانے کرنے کی۔ وہ ناگواری سے بولے، اس سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا کہ دل کوئی کھینچ رہا ہے، مجھے پاپا کے پاس لے جائیے۔ اس کی مدم ہوتی ہوئی آواز اور پھر آنسو گالوں پر لڑکنے شروع ہو گئے۔ ایک ہاتھ سے دعا کا سہارا لے رکھا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، اگر بر وقت نہ تھام لیتے تو وہ یقیناً زمین پر ڈیر ہو جاتی۔ تائی اماں نے اسے دیکھتے ہی دل تھام لیا۔ ارے کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے بازوؤں میں سمیٹا اور ان کی آغوش میں آ کر ماہم کو بڑا سکون ملتا تھا۔ اسے تو اب بھی بخار ہے۔ وراج کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ دکھایا تھا، دعا بھی لی تھی، طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، اس لیے جلد واپس آنا پڑا، انہوں نے مختصر بتایا اور کمرے سے چلے گئے۔ حد ہو گئی، لاپرواہی کی۔ بلکہ نے بیٹے کو زندگی میں پہلی دفعہ شدید غصہ آیا تھا۔ لوگ ایک ڈاکٹر کو بھی دکھایا، دعا بھی لی، فارغ۔ بچی کا دیکھو حال کیا ہو رہا ہے، کب سے ہے تمہاری طبیعت خراب؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی، وہ کچھ نہیں سمجھی، بلکہ مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کہیں تمہیں اونچی نیچی جگہ پہ تو نہیں لے کے گیا؟ وہ بس پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے جا رہی تھی۔ بلکہ اس کو یک اس کیفیت کا خیال آیا تو انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا تمہاری گود ہری کرے۔ کل میں ماہتاب کے ساتھ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، تم آرام کرو اور ہاں کوئی سوچ نہیں لگانا ذہن سے، اللہ مالک ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تائی اماں کی بات پر اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب بھی ہونا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ نڈال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ رات دوپہر کا کھانا کھا کر گئے، رات تک نہیں لوٹے۔ سمیہ نے بتایا کہ جرمنی سے پارٹی آئی ہوئی ہے، بھائی گھر نہیں آئیں گے۔ اس پر ایک اور مصیبت آن پڑی۔ وراج آ جاتے تو اس مسئلے کا حل سوچ لیتی، تلاش کر لیتی، آج فیصلہ ہو جاتا کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے، سارا مسئلہ ہو جاتا۔ مگر وہ نہیں ہے تو اس کی فکر مندی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ راز پریشانی سے اور اضطراب سے دعائیں مانگنے لگتی کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو بہت بڑی قربانی سے دینا پڑے گی۔ اور اس کا ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، نہ جانے وراج سن کر کیا کہیں گے اور کیا فیصلہ کریں گے۔ ناشتے کے بعد ہی مہتاب چچی آ گئی، اسے دیکھتے ہی ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ دیکھنا بھابھی بیٹا ہی ہوگا، مہتاب چچی نے رازداری سے کہا تو بلکیس مسکرا دی۔ اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ دونوں خواتین سے لے کر ڈاکٹر انجم ریاض کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر انجم سے مہتاب کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ بے تکلفی کی فضا میں رسمی سی بات چیت ہوئی، پھر ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے اسے اندر لے گئی۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اسے لب کاٹتے دیکھ کر ڈاکٹر انجم نے اس کا گال تھپ تھپایا اور پھر مسکرا کر بولی، آپ اتنا نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹیک اٹ ایزی، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو خواتین باہر بیٹھی ہیں آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اسے مسلسل خاموشی سے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ایک میری ساس اور ایک چچی۔ اچھا تو میں آپ کی ساس کو خوشخبری سناتی کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ حالانکہ اس بات کا اسے خدشہ تھا، لیکن ڈاکٹر کے منہ سے سن کر اچانک اس خبر نے اس کو بم کی طرح اس کے حواس پر جاری ہوا۔ اس نے پریشان ہو کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو کاغذوں میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے وہ اب رو پڑے گی۔ آپ بالکل خوف زدہ نہ ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی ساس کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر انجم نے انٹرکام اٹھایا تو فوراً بولی، سنیں ڈاکٹر۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ پلیز انہیں نہ بتائیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے انٹرکام رکھ کر حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ڈاکٹر انجم کا لہجہ اور انداز یکایک بدل گیا۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی آزادی اور عیش کے در سے یہ چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد ماں نہ بنے، ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے غلط کام کی توقع کی جا رہی ہو۔ ماہم یکایک اس کے چہرے پر بھانپ گئی کہ وہ اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہے۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر، وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، میرے شوہر بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کو دوں، اس کے بعد سب کو پتہ لگے۔ مجرموں کی طرح چہرہ چکا کر معصومیت سے بولی تو ڈاکٹر انجم نے کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
ना प्यार करती हैं आप? उन्होंने पेन बंद करते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछा। तो उसने इस्तबाब में सर हिला दिया। एनीवे आप घबराइए नहीं, इन्हें बताऊंगी नहीं। बाय द वे आपके शोहर से हमें ज़रूर मिलाइएगा। मैं देखना चाहती हूँ इतनी प्यारी सी लड़की किस खुश नसीब को चाहती है। वो बस खामोश रही। आप ये रिपोर्ट और टेस्ट रख लीजिए। हाँ, अलबत्ता एहतियात ज़रूर कीजिएगा। वो चेहरा झुकाकर हदायत सुनती रही और जब अंजुम डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ कमज़ोरी है, कुछ दवाएं और बेड रेस्ट लिख दी है, तो वो दोनों ख़वातीन मजाक की तरह बैठ गई लौटते ही बिल्किस ने महताब से कहा, महताब तुमने डॉक्टर को नहीं बताया कि माम? अरे भाभी कैसी बातें करती हैं, और क्या ज़रूरत है हमें ये बताने की? फिर देखें तो माम वैसी रही है कितना बदल गई है। इंशाल्लाह ताला जब बच्चे होंगे तो शिकायतें करेंगी आपसे, आपकी बच्चों की भी और बच्चों के बाप की भी। महताब ने हंसकर कहा तो बिल्किस मुस्कुरा दी और ढेरों दुआओं की कमरा चली गई। 2 दिन हो गए वो राजगर नहीं आए। ताई अम्मा इसे देख देख कर घूम रही थी। महताब चची को फिर बुलाया। महताब मुझे लगता है तुम्हारी डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है। लड़की का हाल देखो क्या से क्या होता जा रहा है। कल कलीमुल्ला भी कह रहे थे कि किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर को भाभी दिखाएं। तो वह है भाभी, आप लोग जो नाहक परेशान कर रखते हैं। खाना पीना तो दूल्हा ने इसलिए छोड़ा है कि मियाँ साहब जो घर नहीं होते। बेटे को लताड़ती हो हर वक्त, बहू को लताड़ती रहती है, बन गई ना रवायती सास। महताब ने हंसकर क्या कहा, क्या करूं, इसके कारोबारी झंझट असल से ऐसे हैं। मामा बराज कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया। लो आ गया, तुम ही समझाओ इसे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने हस्बे आदत सलाम किया। वालेकुम सलाम। चच्ची चटक कर बोली, शरीफजादे तुम हनीमून पर आकर इस तरह गायब हुए हो जैसे लड़की को हुआ करके ले ये थे। चच्ची बेतकल्लुफ होते वक्त बंदा देख भी ले कि बंदा कैसा है। फराज ने हांग लगाई। तो लो भैया, बंदिया देखना शुरू कर दिया ना तो फिर कर लिए मजाक। इसका दिल छोटा, इसका दिल बड़ा, इसका दिल पतला, इसका दिल लंबा, इसका बुरा ना लगे, इससे अच्छा ना लगे। वो एक ही सांस में बोलनी तो सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान भी हंस पड़े। नहीं आप मजाक क्या कर लीजिए, मैं सचमुच बुरा नहीं मनाऊंगा। ऑफिस में दरअसल ये अचानक काम आन पड़ा, इसलिए गैर हाजिरी पर माफी चाहता हूँ। उन्होंने शरीर अंदाज में कहा तो चची और अम्मी का गुस्सा उतर गया। अच्छा अपने कमरे में जाओ, और माम तुम्हें बहुत याद कर रही है, हर वक्त तुम्हें पूछती है, और ये से समझाओ खाया पिया कर वरना मर जाएगी। चची की बात पर उन्हें शदीद दुख हुआ। क्यों पूछ रही थी वो बार बार इनके बारे में? वो बेयकीनी सी कैफियत में अंदर दाखिल हुई। पहली निगाह उस पर पड़ी। वो नमाज ज़ोहर अदा कर उठी थी, जहाँ नमाज तय कर रही थी। इन्हें देख कर चौंक गई। निगाहें झुक कर इसके कदमों में उलझने लगी। वो जो बार बार समिया से इनके बारे में पूछ रही थी कि कब आएंगे, कब बात करेगी। विराज हसन ने भरपूर निगाहों से इसका जायजा लिया। अजीब कुतराया सा अंदाज था इसका। इनके अंदाज से जरा भी ना लग रहा था कि वो इंतजार कर रही है। वो इसके अंदाज पर उलझ कर रह गई। घर वाले बता रहे थे तुम मुझे याद कर रही हो। उन्होंने इसके मद्दे मुकाबल जाकर अजीब चिड़चिड़े अंदाज में पूछा। जी। वो मुझसे कह सकी। क्यों? उनका अंदाज तीखा था। मुंसराब से हथेलियां मसल रही थी, आंखें पहले ही आंसू बहाने के लिए तैयार थी। इनकी खामोशी नाकाबिले फहम थी, फिर इसका रोना अजीब सा अंदाज। वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं रहे थे। इसकी खामोशी पर झुंझला गए। कोई वजह थी या यूं ही परेशान कर रखा था सबको? उन्होंने इसका चेहरा दोनों हाथों से ऊपर करते हुए बेजारी से पूछा। वो रो रही थी। हसन हसन मैं माँ बनने वाली हूँ, वो लपकाट कर बोली, और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। वो दम बखुद से खड़े देखते रह गई। ये खबर उनके लिए भी एक धमाके से कम ना थी। कई लम्हे इनकी इसकी सिसकियों और इनकी खामोशी की नजर हो गई। वो इनके सामने से हटकर सोफे पर जा पड़े। इसकी तवील खुपोशी से पूरे सरार लग रही थी। गोया फैसले की घड़ी आ गई है, वो इंतहाई सोच अंदाज में वो कहते हुए कुछ देर बाद बोले। चेहरा किसी नरम तअस्सुर से आरी था। कोई भी सपाक फैसला करने से पहले हसन जा मेरे बारे में जरूर सोच लीजिएगा। वो तड़प कर इसके सामने आ गई। कुछ नहीं,
मेरी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में। वो रोते रोते इनके कदमों में बैठी चली गई। वराज असद उठे और मजबूत कदमों से चलते हुए कमरे से निकल गए। इसका दुपट्टा इनके वे पैरों में लिपट कर पैरों की धूल बन गया था। तुझको पाया तो कुछ शाख ही लेंगे, गम भी अमृत समझ के पी लेंगे, वरना यूं है कि दामन दिल में चंद सांस हैं गिन के जी लेंगे। जाते इसने क्या कुछ कह दिया था। शाम तक इनका इंतजार करती रही कि वो कहाँ चले गए। इसका दिल डूबने लगा। उन्होंने कबूल ना किया तो क्या होगी, और वो अपनी नजरों में गिरकर जलील और रसवा हो जाएगी। ताई अम्मी इसके कमरे में आई। इसे अंधेरे में बैठा देखकर इनका दिल कट गया। लाइटें जलाकर इसके पास आई। क्या हर वक्त सोचती रहती हो? जानती हो ज्यादा सोचने से आदमी तन्हा रह जाता है। हंसा भूला करो, झगड़ा किया करो, क्यों अकेली बैठी हो? यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। उन्होंने अपने करीब करके इनसे प्यार किया। कितने प्यारे प्यार करने वाले हैं इसके चारों तरफ। अगर प्यार करने वालों को मालूम हो जाए कि वो इंतहाई मुफाद परस्त और झूठी है, तो इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है इसकी नादानी समझ कर माफ कर दें। माँ जैसी सास, बहनों जैसी नंदे, भाई, सब कुछ मिल गया था सिवाय शोहर के। पता नहीं इसे क्या था जब तक अपना शोहर नहीं था। ताई अम्मी, आप मुझे मुझे छोड़ तो नहीं देंगी? मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, बहुत तन्हा आप लोगों के बगैर। वो खर्चा से लबरेज भीगे हुए लहजे में बोली। कैसी बातें कर रही हो तुम? अकेली रहती हो ना, इसलिए ऐसा सोचती हो। जाने का क्या क्या सोच रही हो? चलो उठो, बाहर निकलो। देखो समिया फराज ने कितने खूबसूरत नए पौधे लगाए हैं लॉन में। ताज़ा हवा में रहने से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। और देखो हुलिया क्या खराब कर रखा है। जानती है रोज कलीमुल्ला तुमसे शाम को मिलने आते हैं। तुम्हें खुश देखकर खुश होते हैं और तुम्हें उदास चेहरा देखकर अफसरदा होते हैं। तुम जरा ध्यान नहीं रखती अपना। उन्होंने लाड से डांटा तो अचानक पापा का ख्याल आते ही इसकी रूह तक शांत हो गई। मैं आज पापा से मिलने कुछ जाऊंगी। वो जाने किस ध्यान में से पलट कर खुशी से बोली, बिल्कुल आया जाया करो, इन्हें तो और भी खुशी होगी। तैयार हो जाओ, वराज आने वाला है, इसके साथ चली जाना, वरना मैं ड्राइवर के साथ तुम्हें भेज दूंगी। ताई अम्मी प्यार करते हुए चली गई। वो वक़्त जो इंतजार करते करते लम्हों से सदियों में बदलता जा रहा था, घर जाने के साथ से पल लगाकर उड़ने लगा। वो नहा कर निकली, बाल गीले थे, उन्हें खुला रख कर पुश्त पर छोड़ दिया। कांसी रंग के लिबास में वो किसी चमन का खुशगवार फूल लग रही थी। साथ ही किसी आईने में खुद को देखा। बीकी काजल की तहरीर सारे श्रृंगार पर बारी थी। वो अफसोस से आईने के सामने से हट गई। ड्राइवर के साथ घर आई तो पता लगा कि पापा घर नहीं है। वो एक दो घंटे तनहा अपने कमरे में रहना चाहती है। ड्राइवर बाहर से ही चला गया। पोर्च में वराज हसन की गाड़ी देखकर वह हैरान सा था और दम बखुद रह गई। वराज हसन यहाँ क्यों आए हैं? क्या पापा को सारी हकीकत बताने? माय गॉड, उसने खुद को संभाला। पापा को आज ही इस मसले से मसले से आगाह करना कोई मसले का हल तो नहीं है। इसकी रूह तक काम गई। इलाही जान, इसे सामने आता देख नजर आया। इसने सलाम किया तो इसने गर्मजोशी से इसका जवाब दिया। मुलाजिम इसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे इसके सींग निकल आए हों। क्या खेल खेला था, इसलिए हर आमो खास में तमाशा बन के रह गई। बीबी जी, वराज हसन भी जो आए हैं। अच्छा, क्या पापा घर हैं? नहीं, कलीमुल्ला साहब तो नहीं है घर पर। तो फिर किससे मिलने आई हैं? वो हारून साहब के साथ आए हैं। हारून साहब कमरे में बैठे हैं, वो किसी काम की जल्दी में था, कहकर चला गया। ये क्या मामला है? हारून से डिस्कस करेंगे? माई गॉड, मैं किस अजाब में फंस गई। वो लर्जते वजूद की हमरा मुश्किल हारून के कमरे तक पहुंची। जाने हारून के क्या तासुरात होंगे ये सब की सुनकर। वो दरवाजे से बाहर ही रुक गई। बारह से एक एक कदम उठाना अजाब हो रहा था। काश मरना आसान होता, अख्तियार में होता। खिड़की से झांक कर देखा, जरा सा पर्दा हटाया तो देखा हारून और बराज सोफे पर बैठी हुई। दोनों की पुश्त नजर आ रही थी। सेंट्रल टेबल पर चाय के काफी लवाजमात रखे थे। खाली चाय की प्यालियों से लग रहा था कि काफी देर से आए हुए हैं। कुछ वक्त कमरे में खामोशी थी। इनका मौजू का मकान था, वो समझने से काजी थी। कुछ देर के बाद बराज की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। एक तो वो डॉक्टर हाशमी ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है।
आए दिन आए जाते हैं, समझ नहीं आता क्या किया जाए। मैंने जो तजवीज़ बताई वो बिल्कुल ठीक है, हारून ने कहा। वो तो ठीक है, अब मुझसे मज़ीद परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। बराज कह रहे थे, वो हैरान परेशान सी इन्हें सुन रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसी गुफ्तगू हो रही है। फिर मैं ये चाहता हूँ कि बात इस तरह खुले कि एकदम शॉक ना हो, क्योंकि आजकल वैसे ही इसकी तबीयत ख़राब है, कहीं उल्टा नुकसान ना हो जाए। बेफ़िक्र हैं, काफ़ी मज़बूत असाब की मालिक हैं, कुछ नहीं होगा। साफ-साफ बता देना कि वो किसी प्राइमरी स्कूल का सर्टिफ़िकेट था जो आपने जला लिया, तलाक नहीं हुई, निकाह बिल-दस्तूर कायम है। ये एक महज़ ड्रामा था, अलबत्ता दफ़ाई तौर पर हेलमेट पहन लीजिएगा। मुबादा सुनते ही आपका सर ना फाड़ डाले। इसकी बात पर दोनों का कहका बुलंद हुआ। इसे यूं लगा जैसे गहरे पर माल में जा गिरी हो। इतना बना हुआ मुसाविक इसके साथ वो सकते की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल से आ लगी हो अपनी इज्जत इज्जत नीलाम करके। ये सफ़र किया था, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पाँव में जंजीरें डाल दी गई हैं, वराज ने बड़े वसूख के साथ कह रहे थे। कैसी जंजीरें, कौन सी जंजीरें? फराज हसन ने सन्नाटा तोड़ा। वो जख्मी शेरनी की तरह पथरा कर वहां से चली गई। क्या समझा है आपने मुझसे? आपने मेरे साथ ऐसा ड्रामा किया और हराम हारून तुमने इनका साथ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी जाने कितने लोग शामिल होंगे मेरी बेइज्जती पर पीठ पीछे हंसने वाला है। अगर ये सब कुछ ना होता तो न जाने मुझे कितने दिन इस कैद में गुजारना होता। बहुत ख्याल है अपनी आने वाली औलाद का, कुछ हो ना जाए। मैं इंसान ही, मैं बीवी नहीं हूँ। आपकी हसन जहाँ मुझे जलील करके रख दिया है और हंसते हैं। मैंने आपके सामने अपनी हंसी मिटा डाली। क्या मिला मुझे? मजाक, जिल्लत, बेबसी। और आपको ऐसा जख्म देकर जाऊंगी कि क्या याद करेंगे? आपने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, सारे बलकत ना निकाल दिए तो मेरा नाम माहम जहा नहीं। सिर्फ एक शख्स ने कितनी आसानी से सबके सामने मुझे ड्रामा बना रखा था। याद करोगे हसन जहा किस पागल से वास्ता पड़ा था आप मातम करना अपने आने वाले पर। वो गाड़ी लेकर जूं ही निकली, इसके जराना तेवर देखकर इलाही बख्श ठटक गया। सर पेट इनके कमरे में दौड़ा। गाड़ी की आवाज़ पर वह दोनों निकल आए। बराज साहब, वहाँ भी आपकी गाड़ी ले गई हैं। कब, कहाँ, क्यों? दोनों शशतर रह गए। वो आई तो बिल्कुल ठीक थी, आपकी कमरे की तरफ गई। 5 मिनट बाद वापस आई तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही हालत थी जैसे उनके दौरों के वक़्त आंखें सुर्ख होती थी। मैंने पुकारा पर रुकी नहीं। गाड़ी गाड़ी में आपने चाबी क्यों छोड़ी थी? इलाही जान बात बताते हुए सवाल पर उतर आया बड़े मलाल के साथ। ओ माय गॉड, लगता है उसने हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली। हारून ने कहा, फिर बोला, ये वक़्त इन बातों का नहीं। बरात झंझला गई। तुम ऐसे करो, गाड़ी निकालो। इलाही जान, तुमने देखा वो किस तरफ गई थी? वो तेज तेज कदमों के साथ बाहर निकल आई। जी, इस तरफ। गोया घर नहीं गई। ये गुफ्तगू सुनकर घर भी कैसे जा सकती? आप ऐसा करें, गाड़ी लेकर इस तरफ निकले, मैं आज साथ वालों की बाइक लेकर आपके पीछे आता हूँ। वराज गाड़ी लेकर निकले, हारून इसके पीछे निकला। सुनो इलाही जान, चचा आए तो इन्हें कुछ मत बताना, समझे? जी अच्छा। अच्छा के बच्चे, कहा भी था कि किसी को ना बताना कि वराज भाई आई हैं, और जब माँ हम आई थी तो हमें क्यों नहीं आके बताया? हारून ने इसे पूरी तरह डांट दिया। वो जवाब में सुने बगैर निकल गया। इलाही जान हैरानगी से इनका मुंह देखने लगा। कैसी पुरस्कार और मुबइन सी गुफ्तगू कर रहे हैं वो लोग। बारात ने गाड़ी रास्ते पर डाली। हारून इनके पीछे पीछे था। सड़क तीन तरफ चलती थी। अब गाड़ी किस रास्ते पर डाली जाए? इतना बड़ा शहर, जाने किस हिम्मत गई है? बराज हसन ने गाड़ी की स्पीड हल्की करते हुए फिक्रमंदी से सोचा, अगर वो सीधी जाती तो जरूर नजर आ जाती। सिर्फ 5 मिनट का गैप ही तो था इनके निकलने में। लगता है वो दाएं तरफ की सड़कों की तरफ निकली है। हारून ने करीब आकर कहा, आप ऐसे करें, इस तरफ जाएं, मैं इस तरफ देखता हूँ। आप यकीनमंद ना हूँ, इंशाल्लाह ताला ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी। वो इन्हें परेशान देखकर हारून ने से इन्हें तसल्ली दी। हाँ, यकीनन हम दोनों में से किसी को आगे मिल सकती है। वराज हसन ने तायद की। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हारून इसी से मत निकल गया। शाम के साए फैल रहे थे। रात की रंगीनियों और रोशनाइयाँ सूरज के डूबने के साथ साथ ही सड़कों पर जवान होने लगी। दोनों तरफ सड़कें मसरूफ थी, लोगों के हजूम में निगाहें दौड़ाते जा रहे थे। सदा शुक्र है गाड़ी लेकर गई, जिसकी वजह से इसको तलाश करना आसान हो गया, वरना इतने बड़े शहर में इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता। शायद हादसे की खबर
किसी हॉस्पिटल या फलाही इलाज अदारे से इत्तला की सूरत में ही पहुँच पाते। बराज हसन की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें इनकी बेबसी का हाल बयान कर रही थी। उधर हारून की भी यही हालत थी, आखिर इतनी जल्दी किधर निकल गई। इन दोनों के ज़हन में बार बार यही आ रहा था। फिर अचानक ही बराज हसन के पाँव ब्रेक पर पड़े। इनकी सफ़ेद लिसान पेट्रोल पंप सना हॉस्पिटल के आगे खड़ी थी। उन्होंने आंखें सफेद कर तेज़ रोशनियों से यकीन किया तो उन्हें नजर आया कि वाकई उनकी गाड़ी थी और किसी के नहीं थी। नंबर देखने के लिए गाड़ी रिवर्स की, इनके पीछे आती गाड़ी से टकराई। इसके पीछे कई गाड़ियों के टायर के साथ ही हारून का शोर, कास्टल की सीटी, सारा ट्रैफिक जाम हो गया। नंबर इन्हीं की गाड़ी था। वो फुर्ती से निकले, लेकिन कांस्टेबल के हमरा दूसरे अफराद इनके सर पर आ पहुंचे। ऐसी रश ड्राइविंग पर वो बताए किसी को रिवर्स करना इनके लिए गैर अखलाकी हरकत थी। इससे कबल ऐसी हरकत कभी ना हुई थी, पर उन्होंने ऐसी ड्राइविंग नहीं की थी, इसलिए आज उनसे इनको निपटना मुश्किल हो रहा था। कहानी का पार्ट नंबर 9 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।